Hello students, good morning. Now every student will open their worksheet, page number 46. We are going to do question bank. We are going to solve the questions at the end of the worksheet, question bank. Okay, so before that, let's revise the chapter quickly. Then we are going to write down all the 5 answers here in our worksheet. So, first of all, the name of the chapter is Flags of the World, chapter number 5 in our English textbook. Here we learn about the meaning of the flag of the India, all the colors which is there in the flag. Flag में जो भी colors है उनके meanings सबसे पहले हमने learn किए थे. Saffron stands for courage and sacrifice. White stands for truth and purity. Blue wheel is there in between, which is stand for peace and progress. And the last one, green, it is stands for prosperity and energy. So we are very clear with these colors. And then we have started with the chapter. In this we found that letters are written here, which is written by Ketan to his grandmother, and they all talking about in all 3 letters about flag of different countries. So first letter is written by Ketan to his grandma, second letter is written to Ketan by his grandma, and third letter is again written to grandma by his grandson Ketan. And they are talking about what inside the letter? They are talking about flags of different countries. So in the very first page we have seen that here you can see photograph of one person. Who is this? ये कौन है? This is Neil Armstrong. This is called Neil Armstrong. He was the first man to walk on the moon and raise the American flag on the moon. अमेरिका का first time flag moon पे raise किया था. Who did this? It is done by Neil Armstrong. So I think you will have to remember these 2 points here. Then we have seen that Ketan is talking about he read some book and he is reviewing his book. Book read किया and then he is asking grandma about other things about the confusion, because Neil Armstrong raised the flag of America here, and Edmund Hillary and Sherpa Tenzing who went to the Mount Everest for the first time. Mount Everest के top पे ये लोग first time गए थे. These are the 2 person who went on the Mount Everest for the first time, and they raised the flag of Britain and United Nations and Nepal. Now Ketan is quite surprised. He is quite confused why they are raising flag, because he was not aware of the importance of flag. Flag का important क्या है? And now grandma is writing to Ketan. जिनको हम लेटर लिखते हैं उनका नाम स्टार्टिंग में होता है, as we have learned in the letter writing, right? So grandma is writing that flags are important in that period of time. In olden days it was showing that the land of peace belongs to this country wherever they are raising their flag. Now grandma is quite happy because Ketan is learning something nice and he is asking something good questions to grandma. Now grandma is telling about the olden days, that in 18th century all these things happened for the first time. First flag were flown in the 18th century. 18th century में first time flag को flown किया था, raise किया गया था. And why it is raised? It is for that reason that a piece of land belongs to someone. Now today flags are national symbols. वो बोलते हैं कि आज के ज़माने में flag क्या बन गया है? It is national symbols. Flag shown that we belong to that community. हम जो flag हमारे पास हो, वो flag हमें कौन सी community में से हम belong करते हैं वो represent करता है. And we share that belief and goals and rules. Can we draw our national flag? Now they are asking, हम हमारा national flag draw कर सकते हैं? वो जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें मैंने फ्लैग आपको बोला था आपको स्टिक करना है. अगर आप स्टिक नहीं करते हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो. सो येस, आंसर विल बी वी कैन ड्रॉ.
ऑल कल्चर्स यूज सिम्बॉल्स विच इज़ इम्पोर्टेंट टू दैम. जो भी सपोज नेशनल फ्लैग है वो सभी कंट्री का एक जैसा नहीं हो सकता, इट इज़ डिफरेंट डिफरेंट. और उसमें जो भी ड्रॉ किया है, उसमें जो भी सिम्बोलाइज किया है, जो भी सिंबल है, वो कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करते हैं. what they are representing, each and everything is having different meaning. Suppose अमेरिका का है तो अलग होगा, जापान का अलग है, नेपाल का अलग है. So what is happening here, different symbol is having different meanings in their own flag. So here the first thing we learn about the जापान. वहाँ पे सन का पिक्चर दिया है बिकॉज वहाँ पे सन रेज होता है फर्स्ट टाइम इन दिस वी कैन से इन दिस वर्ल्ड. वहाँ पे सन रेज होता है सबसे पहले, राइट. एंड सन इज ऑल्सो सिम्बॉल ऑफ वी कैन से यूनिटी एंड एनर्जी. सो जापान kept symbol of sun in their own flag and these are the meanings of it. Now the second thing we learn about this flag, which is we can say the moon is another symbol found in the flag. moon का पिक्चर दिया है एंड मून यहाँ पे क्रेसेंट शेप में दिया है, मतलब अर्ध चंद्राकार. एंड टूगेदर विद द स्टार्स द मून रिप्रेजेंट डिविनिटी. ये स्टार के साथ है मून तो ये डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है. एंड दिस इज फ्लैग ऑफ टूनिशिया. टूनिशिया कंट्री का ये फ्लैग है. नाउ वी कैन सी स्ट्रिप्स एंड स्टार्स. ये देख के हमें क्या याद आता है, स्ट्रिप्स एंड स्टार्स. दिस इज फ्लैग ऑफ यूएसए एंड ग्रुप ऑफ स्टार्स मीन्स एनर्जी. बहुत सारे स्टार्स एक साथ हम देखते हैं तो इट इज सिंबल ऑफ एनर्जी. एंड दिस इज फ्लैग ऑफ यूएसए. इन द नेक्स्ट लेटर हियर वी कैन सी सम सिम्बॉल्स आर गिवन. तो केतन ने आगे बुक रीड किया था, उसमें ये लिखा था कि अगर उसमें कोई सिंबल दिया है, अगर उसमें कुछ भी ये दिया है, साइन दिया है, तो उसका भी मीनिंग होता है. सो ही वॉज वंडरिंग अबाउट इट एंड वट ही इज राइटिंग, I went to a school library to find out more about flags of the world. I was so surprised to know that shapes also have special meanings in the flag. अगर फ्लैग में कोई शेप दिया है, कोई सिंबल दिया है, कोई साइन दिया है, तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है. एंड इवन इट इज़ रिटन हियर दैट क्रॉस मीन्स द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कंपास. ये यहाँ पे हम क्रॉस दिख सकते हैं, तो कंपास में भी 4 पॉइंट्स होते हैं. तो उन्होंने ये रीड किया कि कंपास के 4 पॉइंट से, ये मुझे जान के थोड़ा सरप्राइज हुआ. एंड दीज आर द फ्लैग्स ऑफ वी कैन से नाउ द क्रॉस इज ऑल्सो सिम्बल ऑफ फेथ. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड हैव दिस सिम्बल. ये इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड के कंट्री के फ्लैग में ये सिम्बल दिया है. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट ये दोनों फ्लैग को कलर को स्वैप कर दिया है. यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पे वाइट कलर का सिंबल है. ओके, सो वी कैन से दैट ये शेप का मीनिंग होता है, शेप के कलर्स को स्वैप कर दिया है. एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग हियर विच वी लर्न. एंड आगे हमने देखा था दिस इज द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, डू रिमेंबर? दिस इज फ्लैग ऑफ वन कंट्री where there is a triangular shape. Okay, एक कंट्री का है, स्टार्टिंग में दिया है. ऑल्सो रीड इंटरेस्टिंग फैक्ट, नेपाल हैज़ अ ट्राइंगुलर. जो एक कंट्री का फ्लैग है नेपाल का, वो ट्राइंगुलर शेप में है. एंड वन फ्लैग दैट हैज़ अ स्विस का फ्लैग है, उसका शेप है स्क्वायर. तो ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल है, शेप का होना चाहिए कंपलसरी. ये स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, एंड ये स्क्वायर भी हो सकता है. नाउ मैनी कंट्रीज हैव फ्लैग टू रिप्रेजेंटिंग सम कल्चर सिंबल. कल्चरल सिंबल भी वो प्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक अ बर्ड होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. मैपल कैनेडाज नेशनल ट्री एंड द कैनेडियन फ्लैग शो द मैपल लीफ. कनाडा का जो नेशनल ट्री है वो है मैपल का, तो कनाडा के फ्लैग में मैपल ट्री का जो लीफ है वो दिखाया गया है. एंड द फ्लैग ऑफ द नेपाल कंट्री इज इन अ ट्रायंगुलर शेप. यू कैन सी ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आपको याद रह जाएगा. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन बैंक वी कैन से. So let's learn that. Page number 45.
Question number 1. What did Ketan learn from the book on the adventures of famous people? Famous people के जो adventure है वो book read की, तो उसमें से क्या सीखने को मिला? कोई अपने अपनी कंट्री का फ्लैग रेज कर रहा था, वो ऐसा हमने देखा था स्टार्टिंग में. सो लेट्स सी द आंसर. Ketan learned that every country has a unique flag of its own. He understands that flags are important too. ये फ्लैग, सपोज कोई पर्सन फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे गया है, फर्स्ट टाइम कोई मून पे गया है, तो कितना ये एक्साइटिंग, कितना एडवेंचरस है ये थिंग. तो वहाँ पे जाके वो फ्लैग रेज करता है. तो ये रीड करके केतन को समझ में आया कि फ्लैग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए. नाउ सेकेंड इज, व्हाट डिड he decided to do after he read the book on adventures of famous people. फेमस पीपल की जो एडवेंचर की बुक है वो रीड करने के बाद केतन ने क्या डिसाइड किया? What he decided? After he read the book on the adventures of famous people, he decided to write a letter to his grandmother and find out more details about from her. Now, when Ketan read that book, उनको पूरा सब समझ में नहीं आया कि फ्लैग्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है. देन ही वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड. So to solve his confusion, he decided to write a letter to his grandmother. Question number 3. What was his grandmother's immediate response on reading Ketan's letter? केतन के जो लेटर्स है वो रीड करके ग्रैंड माँ ने इमीडिएट मतलब तुरंत फटाफट से क्या रिस्पॉन्ड किया? Ketan's grandmother was very happy to know that he was interested in learning about flags. First of all, when grandmother received the letter, he read it. So, being not staying in confusion, Ketan decided to write a letter to his grandmother to know about more details about other flags. Now, question number 3 is, what was his grandmother's immediate response on रीडिंग केतन्स लेटर? केतन का जो लेटर है वो ग्रैंड मदर ने रीड किया, फिर इमीडिएट मतलब फटाफट से, क्विकली क्या रिस्पॉन्ड किया? लेट्स सी द आंसर. केतन्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट फ्लैग्स. सबसे पहले तो ग्रैंड माँ को लेटर मिला एंड व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग इट शी फेल्ट वेरी हैप्पी. उनको बहुत ही अच्छा लगा कि केतन को फ्लैग्स के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है. She decided to share with him all that she knew about flags in a reply to his letter. और लेटर में रिप्लाई में उन्होंने क्या लिखा था? What she wrote? She wrote that उनको जो भी पता था फ्लैग के बारे में, whatever she was knowing about flag, she wanted to share it with the grandson. केतन के साथ उनको शेयर करना था जो भी उनको फ्लैग के बारे में पता था वो. Question number 4. What is represented on the flag of the United States? United States का पहले तो हमें फ्लैग याद करना है, राइट? देन वी हैव टू थिंक, अगर फ्लैग हम याद करेंगे, फ्लैग हमें याद आ जाएगा तो उसमें जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी पता चल जाएगा. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ स्टार्स एंड स्ट्राइप्स. स्टार्स एंड स्ट्राइप्स वाला वो फ्लैग है. What is it showing? ग्रुप ऑफ स्टार हमें क्या दिखाता है? स्टार्स मीन्स एनर्जी एंड हियर इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री. यहाँ पे स्टार्स का मतलब होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स मीन्स एनर्जी. ओके, सो अगर कोई फ्लैग के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वो फ्लैग याद करना है. फ्लैग याद करेंगे तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा. Now question number 5 is, what is scrapbook? How do you think Ketan is going to make scrapbook on flags? सबसे पहले what is scrapbook? scrapbook क्या होती है? Suppose हमारे पास कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक हो या कोई ब्लैंक बुक हो, उसमें हम कहीं से भी, सपोज न्यूज़पेपर में से, मैगजीन्स में से, कहीं से भी हमें जो पिक्चर्स चाहिए वो कट करके पेस्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिकली इट इज़ कॉल्ड स्क्रैप बुक, राइट? बट हाउ वी विल राइट डाउन इफ इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन? अ स्क्रैप बुक इज़ एनी काइंड ऑफ बुक दैट वन कैन मेक विथ यूज्ड पेपर ऑफ द लेफ्ट ओवर पेजेस ऑफ अ बुक. बुक के सपोज कोई पेजेस है जो बाकी रह गए, उनसे वो बना सकते हैं.
For a better learning book, one can make it by using multicolored pages or even buy one from the store. और ये कोई स्टोर में से भी परचेस कर सकता है, कोई अगर बाकी पेजेस बचे हैं बुक में उनमें भी वो बना सकते हैं बेटर लर्निंग के लिए. Now the second question is asked here in this fifth question. How do you think Ketan is going to make scrapbook on flags? आपको कैसे लगता है फ्लैग के ऊपर अगर केतन को स्क्रैपबुक बनानी है तो कैसे बनाएगा? केतन could use one page each for one country. एक कंट्री के लिए हमें ऐसा अज्यूम करना है कि अगर उसको बनाना है तो वो कैसे बनाएगा. वो एक कंट्री के लिए एक पेज यूज़ करेगा, वहाँ पे उसका फ्लैग लगाएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखेगा, फिर कुछ ड्राइंग कर सकता है वो. ही कुड स्टिक और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लैग. वो फ्लैग के पिक्चर्स भी ड्रॉ भी कर सकते हैं और वहाँ पे लगा के कटिंग पेस्टिंग भी वो कर सकते हैं. राइट. सो मैनी मोर थिंग्स कैन बी हैपन. कोई स्टिकर्स अवेलेबल है अगर वो कंट्री के बारे में तो वो स्टिक कर सकते हैं. अगर वो कंट्री में उन्होंने विजिट किया है तो वहाँ पे जो फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं वो फ़ोटोज़ भी वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं. तो स्क्रैपबुक कैन बी इनोवेटिव. एकदम जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके इनोवेटिव वे से जो बनाया जाता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वे में, उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्रैपबुक. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक वी हैव डन 2 or 3 times रिविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड इवन ऑल द एक्सरसाइज. ओके, सो आई थिंक अभी सभी कंट्री के फ्लैग क्या है, फ्लैग्स के मीनिंग क्या है वो सबको याद होना चाहिए. दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर. ओके, सो वी हैव डन विद दिस chapter and I want everyone to revise 2 or 3 times all the videos so that you can remember the whole chapter easily. Okay students, thank you.